नमस्कार दोस्तों I welcome you all who are attending this session by means of Facebook, Zoom and YouTube. I see Aditya Agarwal on behalf of Professional Times. Welcome you all on this webinar on why CA and opportunities for CA post COVID-19. सर हम सब लोग जानते हैं कि कोविड ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। जैसे हम काम करते थे उसके तरीके बदल गए। हम फाइल्स मैन्युअली देखते थे, वो ऑनलाइन हो गई। ऑफिस में रोज जाना होता था, सब क्लाउड पे चला गया। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज भी चेंज हो गई हैं। हमें एज अ प्रोफेशनल भी एक अलग नज़रिए से देखना होगा आगे आने वाले फ्यूचर को और हमारे प्रेजेंट को। एंड टू थ्रो नॉलेज ऑन दिस टॉपिक वी हैव सी ए जगजीत सिंह जी, a renowned chartered accountant, and my guru also. Uh, so today is Teachers Day, and coincidentally, I'm glad to share that CA Jagjit ji was my teacher and trainer in year 2015, uh, as he was my GMCS faculty when I was in my finals. You were in So Gurgaon batch, yeah. yes, so it's my pleasure to welcome Jagjit ji after 4 years, sir. Thank you, thank you. And to just give a brief about him, he is a chartered accountant, as in and is in practice since 2008. He is certified in almost, I think, all the courses of ICI, whether it is concurrent audit of banks, forensic audit, GST, anti-money laundering, and he is a regular speaker on GST, income tax, and various other matters. He's a trainer. He's my mentor. He's a teacher. So I think it is a long list. And let us start today's session with a small positive thought that don't downgrade your dream to match your reality, upgrade your faith to match your destiny. Be happy always. And now I won't take much time. Over to you, Jaggeet ji. Thank you, Aditya ji. First of all, a very the happy Teachers Days to everyone. Those are listening, and Aditya, and the father Amish Mahesh Agrawal ji, sir को भी Teacher Day की बहुत बहुत शुभकामनाएं. So जिस तरीके से ये COVID-19 मार्केट में आया, so इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल में बात करनी है, but the time again the limited time. So we have 1 hour 30 minutes. So 1.5 घंटे में ये सारी बातें करनी है. So it's very difficult to complete each and every like the aspects related to this opportunities for the chartered accountant and why CA. So that is very, very important. So before start my presentation, so first of all, a very warm good evening to everyone and all the respected member of this professional time organization. So thank you for inviting me, CA Mahesh Agrawal ji, CA Aditya Agrawal ji, and some other, the respected member and all the participants, those are listening to this webinar. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि जब से जैसे आदित्य जी ने बोला सो 2015 में हम 5 साल पहले मिले थे. सो व्हेन आदित्य ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट इन द जीएमसीएस बैच. सो उस दिन से ऐसा कह लो कि आपस में एक अटैचमेंट बनी है कि कई बारी बात होती है तो जीएमसीएस की बातें होती हैं, नॉलेज की बातें होती हैं. आदित्य इज आल्सो अ वेरी गुड स्पीकर इन द जीएसटी फील्ड. सो बहुत सारे जीएसटी के ऊपर इन्होंने भी लेक्चर्स लिए हैं, बहुत सारी वैलिडेशंस करते हैं. और जैसा कि जो टॉपिक है जो मुझे आज इन्होंने डेलीगेट किया है कि सर आपको इसके ऊपर बोलना है, सो अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं देख रहा हूं कि जनवरी 2020 जब सीए का रिजल्ट आया, so every newly qualified chartered accountant, they were happy that they have just cleared this chartered accountancy. It's a very difficult, we can say that it's a very easy and very difficult course also. दोनों चीजें इजी भी हैं और मुश्किल भी है. मुश्किल उनके लिए जो प्लानिंग से नहीं चलते हैं और इजी उनके लिए जो प्लानिंग से इसको डिजाइन करके एक एक स्टेप लेके इसको क्लियर करते हैं. So I will take just 2 to 3 minutes to create the base for this presentation. So उसको क्लियर करने के बाद when they were expecting something from the market, like for the job, like in the job area, like in the practice area,
they were looking for the client, they were looking for the job in the industry, they were looking for the job in the banking industry, insurance industry, some other जो department है, like the PSU sector, like the government department. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर वो सबका ध्यान था कि now we have completed our chartered accountancy, now अब पैसा कमाने का टाइम आ गया. बट किसी को पता नहीं था कि दिसंबर 2019 में जो घटना घट रही थी चाइना में, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कितना आएगा. क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो लॉकडाउन थे, उसमें इतने नंबर ऑफ केसेस मार्केट में कोविड के नहीं आए जितने लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद स्टार्ट हुआ. सो उसके बाद मार्केट में जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मैंने भी देखा, कईयों ने देखा कि हमारी फैमिली के, हमारे रिलेटिव में, हमारे बहुत सारे नोन पर्सन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही द फेमस पर्सन मार्केट से धीरे धीरे जाने लगे ड्यू टू दिस कोविड प्रॉब्लम. सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, अभी भी चल रहे हैं. अभी भी हमारी तरफ से अभी भी 2 दिन पहले मेरी बात चल रही थी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ. वो यही कहते हैं, मिस्टर सिंह, इसका जो इम्पैक्ट है होपफुली मार्च 31 मार्च 2021 तक अभी रहेगा. सो अभी तक वो फेस टू फेस वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं स्टार्ट होगा. इंस्टीट्यूट ने भी ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं. बट एक कोविड में अगर कोई पॉजिटिव चीज निकल कर आई है तो वो आया है द बेनिफिट ऑफ द आईटी. So benefit of the IT की वजह से, that is why we are now sitting, before each other. So now we can communicate with each other. We can share the information. We can share the knowledge. I can share my experience with you, and you can share your experience with me. So अब IT की वजह से वो जो कम्युनिकेशन हुआ वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आजकल जो हमारी कॉस्ट है, हमारी कम्यूट करने की जो कॉस्ट है, हमारी पार्किंग कॉस्ट है, हमारी पेट्रोल कॉस्ट है, हमारी और ड्राइवर की सैलरी है, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो रिड्यूस हो गई हैं. और हमारा काफी कॉस्ट इफेक्टिव, ये प्रेजेंटेशन कह लो, कॉस्ट इफेक्टिव कह लो, हमारी जो वर्किंग ऑफिस की, हमारे कंपनी की, या हमारे प्रोफेशन की, हमारे टीचिंग प्रोफेशन की, वो सब स्टार्ट हो गया. इवन इन द केस ऑफ बिजनेस ऑल्सो, कि हमारी जो प्रोडक्ट को जो लॉन्च करना, प्रोडक्ट को जो डिस्प्ले करना, प्रोडक्ट को जो शेयर करना विद द कस्टमर, वो भी थोड़ा सा इजी हो गया. ई कॉमर्स के ऊपर काफी बेनिफिट मिले हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से. बट कोविड का इम्पैक्ट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन में, चाहे वो कहीं पर भी हैं. बट इम्पैक्ट, यस, एवरीबॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट आया है. पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि वाई सीए, why chartered accountancy, why not other course, why not CAs, why not MBA, why not LLB, why not other engineering course, why not some other technical courses. Why CA? Because जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसको कंप्लीट करने के बाद एक क्वालिटी आती है कि वी बिकम एक्चुअली अ प्रोफेशनल पर्सन इन द मार्केट. So when I completed my chartered accountancy, when Aditya ji, has completed his chartered accountancy, so now we are even already the qualified chartered accountant already in the market. We all are actually a professional person in the market. So now we can write our name, and before writing our name, we can even write a CA before our name, right? So that shows what? That shows the professional person in the market. So very first positive point, why CA? If you want to become a professional person, so this degree is very, very important. And why this degree? Because this degree provide you a wide range of jobs. If you're looking for the industry, then industry में बहुत सारी ऐसी jobs हैं. If you're a chartered accountant, then आप accounts में, then आप fixed assets में, then debtors management में, then compliances में, then creditors management में, then funding में, then bank में, then marketing के कुछ ऐसे part हैं जहाँ पे data analytics के काम की मैं बात करूँ, data analyze होता है, research का case है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं, रिसर्च कमेटी में आप हो सकते हैं. So wide range of jobs are available for the professional chartered accountant. Multiple opportunities in the practice. सिर्फ job में नहीं, even in the practice, if you are a chartered accountant, so you have a different variety of the opportunity in the practice. Like as a practicing chartered accountant, you can provide the consultancy. You can do the tax part in the direct tax field, in the indirect tax field, the consultancy, the management consultancy, some other, the forensic audit, like the quality audit, or the energy audit. We have so many opportunities even in the practice. If you are a chartered accountant, then after clearing your chartered accountancy, yes, everybody who has completed chartered accountancy, that person is an independent person. कहते हैं कि सीए करने से पहले
We all are dependent upon our parents, our senior brother, our senior sister, our relatives, even from on the bank under section 80E की बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, तो हम उन सब पे डिपेंडेंट थे क्योंकि वहां से पैसा आता था, तब हमारी सीए चलती थी, तब हम कोचिंग करने जाते थे. But when you complete your chartered accountancy, after clearing your chartered accountancy, actually you're known as a independent person in your life. Even after clearing your chartered accountancy, though the person, जो आपको सपोर्ट करते थे, जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, सीए बनने के बाद आप उनको उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे. Respect and positive image. So when you will complete your chartered accountancy, yes, respect comes from everywhere, from the society, from the friends, from the relatives, from the department, the government department. When you visit to the income tax department and you mention that I'm a chartered accountant, you give your visiting card to the income tax department officer. So that person, give you the respect. Okay, you are a chartered accountant. You're not an article. You're not a just accountant. You're not a lakir ka fakir. You are a chartered accountant. So that respect comes from the market. So each and every person in the market will give you the respect and positive image. Why positive image? सीए बनने के बाद अगर आप किसी प्रोग्राम में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, सबसे बड़ी बात आपका जो ड्रेस कोड है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पोस्चर है, वो इतना सिंपल एंड सोबर हो जाएगा. हर कोई आपको देखेगा कि इंसान कितना ठहरा हुआ इंसान है. Not like a funky person. It's like a very very gentleman, very cool and calm person. So that positive image you will get from the market after clearing your chartered accountancy. Handsome package. If I talk about this handsome package, the point number 6, a handsome package, yes, not in all the cases, but in many cases, yes, a qualified chartered accountant when apply to the industry for the job purpose, yes, he will get a handsome package from the 6 lakh up to the 20 lakhs, up to the 30 lakhs package. Yes, the industry are ready to give you the 30 lakh package, but one condition is required. Are you capable? Are you eligible? Do you have such kind of like the skills which the industry is looking for? If you have, you will get the big package, the handsome amount from the industry, not from the industry. If you are working with the practicing chartered accountant as a practice chartered accountant or as a consultant, even that practicing chartered accountant will give you a handsome amount as a salary. But again, it's totally depend upon your quality, your skills, your knowledge, your sharpness, your practice part, your practical knowledge. Future stability. ये मैंने भी फेस किया है, आदित्य भाई ने भी किया होगा कि जब से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं एक स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है. मार्केट में जितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स हो, तब भी हमारे अंदर स्टेबिलिटी है. मैं मानता हूं कि इस कोविड में बहुत सारे प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, हर कोई डिस्टर्ब हुआ. even the salaried person, because now they are getting 50% salary from the employer instead of full salary. Why? Because this impact of this COVID-19. But future stability, yes, when you are a practicing chartered accountant, when you are working in the industry, you are withdrawing a handsome amount from the industry, you are withdrawing handsome amount from the practicing chartered accountant firm. You can use the 50% of that amount into like the daily expenses, and 50% you can deposit. So that deposit will give you the help for the future stability. So these are the some important points of why CA. First one, again, I'm repeating, if you want to write down in your notepad, please, one is professional person. You will become a professional person, the wide range of jobs, multiple opportunities in the practice, independent person, respect and positive image, handsome package, and the last one is future stability. Very, very important. Now, my next part, which I'm going to start. So in second part, I will discuss what are the opportunities for the chartered accountant. So I have divided every opportunity into 4 categories, into 4 parts. In the first part, I will discuss about the opportunities for the industry person. In the second part, I will discuss about the opportunities for the business person, like those are interested to start their business. In the third part, the part C, in that part, I will discuss the opportunities for the teaching profession, in the teaching field. If you want to start your teaching profession, if you want to join the teaching profession, if you want to teach any subject, yes, you can.
So that I will discuss in the part C. And in the last four part, the part D, if you want to join the practice area, so in the part D, I will discuss so many things in this part D. So I have a time constraint. So अभी भी मेरे पास 1 घंटा और 15 मिनट है, क्योंकि आदित्य जी ने मुझे बोला कि सर 1.5 घंटे का प्रोग्राम है. So 1.5 घंटे के हिसाब से I will try to complete each and every point which I've mentioned, which I have in my mind to deliver, to give you, to value update your knowledge, to update your knowledge, so that when you enter into the market as an industry person, as a practice person, as a businessman, or in the teaching field, you will take benefit from these, like the point which I'm going to mention through my presentation. So the first part, the industry part. Right. So in the industry, if I talk about the industry, you are a qualified chartered accountant, you are not interested to start your practice, you don't want to join the CA firm of the another chartered accountant, the another practicing chartered accountant, you want to join the industry, because industry from the very first day they are ready to give you a, like the money, like a good package, a per month salary, a fixed salary. All your salary can be enhanced in the coming years, after 6 months, after 1 year. Yes, that is possible. But what are the job profile in this industry? So when I will discuss the job profile in the industry, so that job profile maybe could be in the practice area also. So take it in both the side. So in the industry, if you want to join the industry, so first you have to face the interview. So to clearing that interview, you have to update yourself. The income tax ready reckoner, the GST ready reckoner, or some other compliances, the Company Act 2013, or MSME, and some other issues, the CARO report, and some forensic, and some international financial reporting standard. So there are so many things which you have to update on your tips if you want to clear that interview. And the very important, the very first, in the first round, they will see your communication level. Are you effective? Are you able to communicate with the other person? Your presentation skills, your body language, your appearance, your, your appearance, your posture, your gesture. So everything they will see in the industry before accepting you as an employee of their industry. So very important. So what are the job profile? The very first area in the industry is accounting. Accounting. So under IFRS, very fast, international financial reporting. You want to join the industry? IFRS could be the area in the industry, because we can see, we can analyze, even we are looking, we know that we have experience in the last, from the last 5 years. In the year 2008, yes, IFRS actually entered into the market, Indian market. But IFRS is not still mandatory for everyone. अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ, अभी तक ये मैंडेटरी नहीं हुआ, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट 2008 से ऑलरेडी मार्केट में है. मेरे को याद है जब 2008 में मैं क्वालिफाइड हुआ था, so in the month of January 09, the president of ICI, so a very first batch of the IFRS, and I joined that batch. I joined that batch to understand what is this IFRS, International Financial Reporting Standard. So that was totally different than the accounting standard. Now we have the India's part. Now we have the India's part. India's and IFRS almost equal, 95% they are equal. Earlier in the year 2008, so there was a US gap was there, but now that gap is almost removed from, like, between this India's and the IFRS, right? So IFRS एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप जाते हैं, कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट इंडस्ट्री, so it could be one of the opportunity which you will get from the industry, that is the IFRS accounting. Then another one is environmental accounting. What is that environmental accounting? So the vital tool to assist in the management of environmental and operational cost of the natural resources, right? What are the operational cost of the natural resources? To manage that operational cost of the natural resources, then that is what? That is environmental accounting. To assist the management in that particular area, we have to understand, we have to learn, we have to understand so many things about this accounting.
Then the another one is human resources accounting, right? Accountancy profession to quantify the cost and the value of the employee of their employee organization. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उस एम्प्लॉयज जो हैं, द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज, उनकी क्या कॉस्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में जो अकाउंटिंग करनी है, दैट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग. Fraud and forensic accounting, it's a very good, unique and a good area, even in the industry, and we can say even in the practice also. If you have done already FAFD course from the ICI, yes, you will get the assignment related to this fraud and forensic accounting. So if you're working in the industry in the department fraud and forensic accounting, so in this business, inspecting and analyzing financial transaction. So you have to inspect each and every transaction, or you have to inspect and analyze those transactions in which you are looking for, like there is a fraud in the company. If there is a fraud in that company, so you have to check those transactions only to get the actually fraud there, the white collar fraud is there. So you have to check. So we have to work into this area, the fraud and forensic accounting. Another one is government accounting. So in the field of government accounting, recording, analyzing, classifying, summarizing, communicating, and interpreting financial information about the government. You want to join the government department, you want to work there, so you must have the idea about this government accounting. Management accounting. So in the management accounting, analyzing and communicating the financial data to the manager. When you're reporting to the manager, when you're reporting to the finance director, so who use the information to make business, basically the board of director of the company, they are looking for these type of information. If you're working in the industry, then you have to report to the board of director, you have to report to the senior director, you have to report to the financial director, you have to report to the manager, right? So to analyze that data, so that comes under management accounting. If we talk about the auditing part, then in the auditing, like if I will say, one is statutory audit, internal audit, concurrent audit. Please, if you are writing, so मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि side by side you can note down. Even you can see the recording of this program. So after completing this, the program. So statutory audit, internal audit, concurrent audit, stock audit, revenue audit. इसमें कुछ बैंक के ऑडिट हैं, कुछ कंपनीज के ऑडिट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. इंटरनल ऑडिट की बात करें तो कंपनी 2013 की बात करते हैं, राइट. बैंक ऑडिट की बात करें तो उसमें कॉन्करेंट ऑडिट है, इसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज की मैं बात बताऊंगा, कुछ ऐसी डिग्रीज की बात बताऊंगा. जब मैं पार्ट डी की बात करूंगा प्रैक्टिस वाला, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कितने टाइम का कोर्स है, कितनी फीस लगती है, कहाँ से वो अवेलेबल है कोर्स. उनको करने के बाद देन स्पेसिफिक फील्ड में, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप प्रैक्टिस में जाएं, यू विल गेट द बेनिफिट, यू विल गेट द नॉलेज from with the help of this, the post qualification courses. So one is statutory audit, internal audit, concurrent audit, stock audit, revenue audit, information system audit. That is the DISA part, that is the ESA part, that is the CISA part, that is the DS part. DISA की बात करूं, diploma in system audit. CISA की बात करूं, then certification in the system audit. अगर मैं DS की बात करूं, then data science की बात करता हूं, right? So information system audit, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, right? उसके बाद the tax audit, उसके बाद the tax audit, and we have the quality audit, we have the propriety audit, we have the legal compliance audit, we have the energy audit, we have the assurance assignment or the matters, right? So many areas even in the audit part. अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की बात करूं तो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस हैं, राइट. उसमें भी कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं. कंपनी 2013 है, आप किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के ऊपर इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, सो आपको कंपनी 2013 से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले यू नो एवरीथिंग. You know about the income tax, you know about the GST, you know about the accounting standard, you know about the NDS, IFRS, forensic, everything. But when you enter into the market and be there for 2 to 3 years, then actually the knowledge, everything is turned into a specific area. It could be a corporate governance. Economic and commercial law. हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडिया में लॉ हैं
जिसके ऊपर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद उस पर्टिकुलर लॉ के कंप्लायंसेस, उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके उस कंपनी के कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. One is Competition Act 2002, Arbitration and Conciliation Act 1996, Prevention of Money Laundering Act 2002. Very, very important. प्रैक्टिस के एंगल से भी, इंडस्ट्री के एंगल से भी, लिटिगेशन के एंगल से भी, कंसल्टेंसी के एंगल से भी, इवन सीए बनने के बाद अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो ये एक ऐसा एरिया है प्रैक्टिस में कि जिसमें आपका रेवेन्यू अनलिमिटेड हो सकता है, राइट. So Prevention of Money Laundering Act 2002, very important. Micro, Small and Medium Enterprises Development Act and regulation applicable to NBFC. So बैंक से रिलेटेड, NBFC से रिलेटेड कुछ ऐसी कंसल्टेंसी हैं, NBFC yes, कुछ ये कॉर्पोरेशन हैं, NBFC ऐसे हैं जो नॉन बैंकिंग का काम करते हैं, बट इनके जो कंप्लायंसेस है, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके कंप्लायंसेस करवाने एज ए कंसल्टेंट और एज ए एम्प्लॉय इनटू दैट NBFC. Foreign exchange management, very, very important. There is a transaction between two countries. So we have to check this foreign exchange, even the FEMA, even the labor law, right to the Information Act 2005, Consumer Protection Act. कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंसल्टेंसी दे रहे हैं. And very important, the next step is very important, Special Economic Zone Act 2005. आज जो जीएसटी में रिफंड की बात करते हैं, जैसे आदित्य भाई हमारे जीएसटी में बोलते हैं, सुनो एससीजेड के केस में जब हम रिफंड की बात करते हैं और उसमें सप्लाई की बात करते हैं, तो जीएसटी के साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीड दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 कि उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी गाइडलाइंस क्या कहती है, मूवमेंट कहां पर है, क्या बिल देना है, क्या बहुत सारी ऐसी चीजें, ये भी बहुत अच्छा एरिया है. एंड सरफाइसी इंटरेस्ट एक्ट 2002, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. मैं बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं जो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं और इसको रिकवरी के लिए काम करते हैं. बकायदा उन्होंने टीमें रखी हुई हैं जो ये रिकवरी करती हैं, राइट. सो दैट ड्यू टू बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी बैंक है उन्होंने जो लोन दे रखे हैं उसकी रिकवरी का काम करते हैं और बैंक उनको असाइनमेंट देते हैं, बैंक उनको उस रिकवरी अमाउंट को रिकवर करने के लिए कमीशन देते हैं, हैंडसम जो उसकी जो लीगल फीस है, जो प्रोफेशनल फीस है वो देते हैं. ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस, बेसिकली तो कन्वेंस डीड की मैं बात करता हूँ, डीडीए के केस में एलआईजी फ्लैट, एमआईजी फ्लैट, बहुत सारी चीजें हैं. सो कुछ ऐसी कन्वेंस डीड है, कुछ ऐसी ड्राफ्टिंग एरिया है जहां पर बहुत काम है, बहुत काम है. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं मानता हूं कि सभी के सभी, वी ऑल आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस ड्राफ्टिंग, बट यस वी कैन लर्न अ लॉट. अगर हम साइड बाय साइड एलएलबी के ऊपर काम करें, साइड बाय साइड अपनी ड्राफ्टिंग के ऊपर काम करें, अपने राइटिंग स्किल के ऊपर काम करें, अपनी वोकैब के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर काम करें, अपने टेक्निकल टर्म्स को अपडेट करें, तो आई वुड से वी आर मार्वलस इन दिस प्रोफेशन. यस, ड्राफ्टिंग इज अ वेरी गुड एरिया. देन कार्बन क्रेडिट, ये भी अपने आप में एक यूनिक एरिया. कार्बन क्रेडिट, कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूं, वो भी अपने आप में एक यूनिक एरिया है. उसके अलावा टैक्सेशन की बात करूं, देन वी हैव टू फील्ड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड द थर्ड फील्ड which we have in the field of taxation, international taxation. very very important. कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इंडिया में बैठे हैं बट टैक्सेशन करते हैं आउटसाइड द कंट्री के जो एसएससी हैं, बेसिकली द एसएससी ऑफ द अमेरिका, द एसएससी ऑफ द कनाडा. मैं बहुत सारे ऐसे सिंह साहब को जानता हूं जो कनाडा के जो रेजिडेंट हैं, उनके टैक्सेशन यहां से बैठकर करते हैं, ऑनलाइन मैनेज करते हैं सब कुछ. So international taxation part is very important because this is a like the global opportunities for the practicing as well as for the industry person. क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, जो टॉप 20 टॉप 50 चार्टर्ड फर्म में जॉब करते हैं, वो भी इस इंटरनेशनल फील्ड को काम, उसके इसमें काम करते हैं. आर्टिकलशिप में भी उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन को ज्वाइन किया था और वहां पे टैक्सेशन का काम किया था, वहां पर अपनी सर्विसेज दी थी. नाउ दे आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ दे आर वर्किंग विद द बिग टॉप 20 चार्टर्ड फर्म. So they are giving a professional service, they are providing a professional service. So it's a good area, international taxation, the global opportunity. Management services, मैनेजमेंट सर्विस में बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, चेंज मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करते हैं. इवन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन द आईटी फील्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट.
कि कंपनी अपने सिस्टम को, कंपनी अपने जो उनकी टेक्निक है, जो टूल्स हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिजास्टर से कैसे बचाएं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी कंसल्टेंसी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी यस प्रैक्टिस में भी बेनिफिट है। इवन इन द इंडस्ट्री, if you are joining if you are going to join the industry in the department of disaster management, right, it's a very good area. So like the tools and the technique to manage the people side of change to achieve a required business outcome. So सबसे ज्यादा जरूरी कहते हैं, इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी होते हैं ह्यूमंस, बिकॉज एवरी पीपल हैविंग अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड. सो डिजास्टर मैनेजमेंट पहले कहते हैं, पहले लोगों को सेव करो, पहले एम्प्लॉय को सेव करो, फिर इक्विपमेंट को सेव करो, हार्ड डिस्क वगैरह सब उसमें कवर हो जाती है. सो व्हाट इज दैट डिजास्टर मैनेजमेंट? वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रीड अबाउट दिस, राइट. सो मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं चलूंगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, बट मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा फिर है नॉलेज मैनेजमेंट. नॉलेज मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग, रिटेनिंग एंड शेयरिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय विद एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये भी बहुत अच्छा एरिया है. इसमें भी अगर हम काम करें नॉलेज शेयरिंग के ऊपर, इट्स अ वेरी यूनिक एंड गुड एरिया. कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी एक वन ऑफ द गुड एरिया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं ये मानना है मेरा, जब से हमारे भारत देश में मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने ई गवर्नेंस के ऊपर काम किया है. आप देख रहे हो आए दिन कुछ नई चीजें चल रही हैं. अभी 13 अगस्त 2020 को मोदी जी ने एक नई चीज अनाउंस की, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, राइट. उससे पहले ई असेसमेंट 2019 में हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी मैडम ने बजट 2019 में इसको अनाउंस किया, ई असेसमेंट को. सो ये सारी चीजें जो हैं ई गवर्नेंस की तरफ, ई पोर्टल की तरफ चल रही हैं. अब वो फिजिकल मूवमेंट नहीं है. नाउ you don't have a need to visit to the income tax department personally. Even you can, if you want to represent the case of your SSC through this information technology, yes, you can represent that case through with the help of this information technology. So in the information technology, अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है, एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे थे. वो आईटी में उनका बहुत नॉलेज है, आईटी में बहुत, मतलब ही इज अ मास्टर इन द आईटी फील्ड. सो उन्होंने बोला कि जगजीत, आने वाले टाइम में मैनुअल अकाउंटिंग इज टोटली वैनिश फ्रॉम द मार्केट. मैं कहा सर क्यों? कहते बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक नई फील्ड आ रही है जो तैयार हो रही है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस in the machine, so that are programmed to think like a human. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक, कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हुआ, कई ऐसे रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट सर्विस देते हैं, राइट, वो आपको खाना सर्व करते हैं. सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दुबई में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो विदाउट ड्राइवर चलती हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, द टेक्नोलॉजी पार्ट इज गोइंग अपडेट. So when this part is updating a day by day, a daily basis, मोदी जी ने भी गवर्नेंस को बोला कि इसको आईटी बेस बना दिया जाए, ना कि इसको मैन पावर से हटा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए. तो उससे होगा क्या? आने वाले टाइम में आपका जो सिस्टम का जो डेटा है, जो टेली डेटा है, आपका ईआरपी डेटा है, या आपका किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा है, उस डेटा को चेक किया जाएगा with the help of this artificial intelligence. There is no need the visit of the like the personally visit of the like the human as a auditor of that company for the internal audit, for the start audit. Yes, ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो मार्केट से खत्म हो रही हैं, बट खत्म होने के साथ ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है. एम्प्लॉयमेंट आ रही है, बट आ रही है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की. सो वी हैव टू स्टडी ऑन द डेली बेसिस. मैं तो अपने स्टूडेंट को, मैं अपने मेंबर्स को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने टीम मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोज 1 घंटा पढ़ो, रोज 1 घंटा कुछ ना कुछ स्टडी करो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड. इफ यू वांट टू मूव अहेड, yes, we have to update ourselves, very important. We have to read on the daily basis for the latest change. Yes, that is very, very important. If you are looking for opportunity in the market, if you are looking for opportunity in the industry, if you are looking for an opportunity in the practice of the teaching profession or any business, you have to update even in the IT part. And the second big opportunity in the information technology is blockchain. Blockchain, it's a very new area. ये हमारे लॉकडाउन से पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, जो आईसीआई का प्रोग्राम मैंने लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था कनॉट प्लेस में. द एमसीडी का जो हेड ऑफिस है, उसके जो
और बेसिकली उसका जो हॉल है वहां पर मैंने ज्वाइन किया था ब्लॉकचेन के ऊपर. सो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट्स डिफिकल्ट or impossible to change, hack, or cheat the system. Now, why this blockchain is required in the market? Because as I mentioned in the previous point, the artificial intelligence. When there is an involvement of the IT, definitely there is a problem of hacking. Definitely there is a problem of cheating with the system. Some instructions, the designer, the manufacturer, or like the or we can say makers of this software maybe add some instruction in that particular system to cheat the company. So in that case, if that maker cannot cheat to the company through the system after designing it accordingly, like for his benefit only, so that is why this blockchain is there. So blockchain is system of recording information in a way that make it difficult or impossible to change. You cannot change if there is a blockchain is there. You cannot change the data. You cannot hack the data. You cannot cheat with the system. You cannot manipulate the system. So that is why the blockchain is there. So it's again a second, a very new and very a professional area in the field of information technology. Third one is cloud computing. आज हमें पता है कि हम जैसे जूम पे बैठे हैं, राइट? आज हमारी कोई एक फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, उसको मैंने गूगल ड्राइव पे रख दिया और उस फाइल को मैंने कैरी नहीं किया. सपोज मैं यहाँ से विजिट करता हूँ अमेरिका और उस फाइल को मैंने कैरी नहीं किया. मैं बोला यार वो फाइल मैं इंडिया में भूला है, बट उस फाइल को मैंने गूगल ड्राइव पे रख दिया. सो नाउ आई कैन एक्सेस दैट फाइल, दैट एक्सेल फाइल even from America, even from Canada, even from England. I can access that file from anywhere in the world, all over the world. I can access that file without carrying that file in my, like in the pen drive, in the hard disk, in my the briefcase. I'm not carrying that file. I'm not carrying that data in the Excel file. But yes, that data actually available. Where that is available? That is available in with this cloud. So what is that cloud? A network of remote server hosted on the internet to store, to manage, to process data rather than a local server or a personal computer. So you cannot, maybe you have saved some files in your personal computer, but if you save that file in the Google Drive or in the storage or in some other, the database from with the help of this internet, you can access that information all over the world. From anywhere you can access that information. That is why this third important opportunity is cloud computing. Then data analytics. फोरेंसिक की बात करूं, राइट? आने वाले दिनों में मैनुअल ऑडिट मैंने ऑलरेडी बोला खत्म हो जाएगी. सो मैनुअल ऑडिट जब खत्म होगी, देन व्हेन यू हैव लाइक अ ह्यूज डेटा फ्रॉम द कंपनी, लाइक आपने उस कंपनी के जो डेटा मेंटेन करते हैं, उस आईटी उस कंपनी के जो आईटी डिपार्टमेंट, उसको आपने बोला कि सर डेटा हमें अवेलेबल करा दीजिए सो दैट वी वांट टू स्टार्ट द ऑडिट पार्ट. सो आप एक एक डेटा को अगर मैनुअली ऑडिट करोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. यू कैन नॉट कंप्लीट योर ऑडिट विद इन दैट लिमिटेड टाइम. ड्यू डेट उसकी आने वाली है 30 डेज है और डेटा ह्यूज है. अगर आप उसको मैनुअल ऑडिट करेंगे सो वो मे भी हो सकता है आपको 1 ईयर लग जाए, मे भी हो सकता है आपको 6 मंथ लग जाए. सो इट विल क्रॉस द ड्यू डेट actually. But when you have an idea, when you have a knowledge about this data analytics, so that actually help to the auditor for auditing that data. So after getting a huge data from the IT department, you can convert that data into the into the filter form. So with the help of these filter, basically, which you are going to you are going to start that filtering the data. So with the help of these filters, actually you can analyze that data properly according to the requirement, according to the audit guidelines, according to the requirement, rules and regulation, according to the compliances. So when you analyze that data with the help of these filters, तो एक्सेल शीट अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है. एक्सेल को कोई भी नहीं पूरा तरह समझ पाया. इवन जो कहते हैं कि हम एक्सेल के मास्टर हैं, इवन दे आर नॉट मास्टर एक्चुअली इन एक्सेल. वो डे बाय डे एक्सेल को जितना समझो, एक्सेल अपडेट होता है, उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं. सो इफ यू आर यूजिंग एक्सेल, इफ यू आर यूजिंग सम अदर ऑडिट टूल्स फॉर एनालाइजिंग, फॉर डेटा एनालिटिक्स purpose, yes, it will help you to complete that audit not before the due date. Actually
even within a limited time period, within a very short period, within the very short period. So if you are going to use that IT part in this data analytics part and this data audit, yes, it will give you a big benefit, like the big, the time saving approach actually. So data analytics. So in the IT field, we have four major opportunities. One is artificial intelligence. If you want to become, yes, it's a good area. Blockchain. If you want to read this blockchain, if you're looking for assignment like a blockchain in the field of blockchain, cloud computing, data analytics. So these are the basically area in the field of IT. If you want to work like a practicing chartered accountant in that particular field, yes. If you want to join the industry in particular that field, the department, yes, possible. Even you can give the consultancy. नाउ ड्राफ्टिंग की बात करते हैं. अगर ड्राफ्टिंग की बात करें तो हमें पता है कि ड्राफ्टिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऐसी हमारे एमओयू से लेके स्टार्ट होता है और बिल्कुल जो हमारी टाइटल डीड है वहां तक जाता है. जैसे मैं पार्टनरशिप डीड की बात करूं, ड्राफ्टिंग में बहुत समंदर है. आप उसमें एक एक चीज समझें. ड्राफ्टिंग में अगर आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, आई वुड से यू शुड गो फॉर दिस ड्राफ्टिंग पार्ट ओनली, द लीगल ड्राफ्टिंग पार्ट. बट इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन, इसके लिए आपको राइटिंग स्किल, इसके लिए आपको कंटेंट, इसके लिए आपको टेक्निकल टर्म, इसके लिए आपको हो सकता है लीगल एलएलबी भी कंप्लीट करना पड़े, लीगल डिग्री भी आपको लेनी पड़े, राइट. सो उसके बाद जब आप इसको लिखेंगे, जब ड्राफ्टिंग करेंगे, जब इसको राइट करेंगे, आई वुड से यस, इट विल गिव यू अ बिग बेनिफिट. आपके रेवेन्यू कमाने का, आपके इनकम का जरिया बहुत अच्छा जरिया, क्योंकि इस फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम है, एडवोकेट बहुत ज्यादा है. सो वेरी फर्स्ट पार्ट, इसको मैं अगर ब्रीफ करूं, सो फर्स्ट पार्ट इज पार्टनरशिप डीड बनानी है, एमओए बनाना है, एओए बनाना है, चैरिटेबल ट्रस्ट की डीड बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनाने हैं, उसके अलावा एमओयू बनाना है, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है, और उसके अलावा प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनानी है. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है. ड्राफ्टिंग की फील्ड में कुछ बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं. अगर उनकी बात करूं, सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, स्टॉक होल्डर एग्रीमेंट है, स्टॉक परचेज एग्रीमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट है, एजेंसी एग्रीमेंट है, एजेंसी एक्ट वाला, सर्विस एग्रीमेंट है, कंसल्टेंसी एग्रीमेंट है, हायर परचेज एग्रीमेंट है, टेंडेंसी एग्रीमेंट है, एंड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, और सम अदर एग्रीमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आर इन द मार्केट. मोर्टगेज एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट फॉर रिलेटेड टू द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स है. बहुत सारे एग्रीमेंट है. अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग में अगर काम करें, सो मैं बोलता हूं, चाहे आप कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें एज एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, चाहे आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं और प्रैक्टिस में भी ड्राफ्टिंग में ही काम कर रहे हैं, तो भी बहुत कमाई है, बहुत पैसा है. इसके अलावा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, उसके अलावा विल है, विल की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, पेटेंट की बात करें, लाइसेंसिंग की बात करें, फ्रेंचाइजी की बात करें, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट की बात करें. सो ना, उसके अलावा बैंकिंग डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो बैंक गारंटी की बात कर सकते हैं, लोन एग्रीमेंट की बात करते हैं, लीज डीड की बात करते हैं, ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग एग्जिम फाइनेंस की बात करते हैं, एजेंसी एग्रीमेंट ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं. ये इतने सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं. अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो इसमें काम कर सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री ज्वाइन करे या वो प्रैक्टिस ज्वाइन करे एज ए कंसल्टेंट. नाउ बात करते हैं पार्ट बी की, बात करते हैं बिजनेस की, बात करते हैं बिजनेस की. अगर मैं बात करूं तो मोदी जी ने 2016 में कुछ ऐसी बिजनेस पर्सन से रिलेटेड जो स्कीम्स निकाली थी, जिसको हम बात करते हैं स्टार्टअप की स्कीम्स. आप चाहे एज ए ट्रेडर काम करें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नो इशू. बट if you are a member of the ICI, no issue, but you should not be a practicing chartered accountant. If you are a practicing chartered accountant, then first you have to surrender your COP with the ICI, then you can join the business, then you can start your business. Like the trading field, which you have, the manufacturing, importing, exporting, service provider. As a service provider भी market में enter करना चाहते हैं, that is very much possible. But what is that startup scheme announced by Mr. Modi ji, Narendra Modi ji, in the year 2016 on 16th January? उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी स्कीम्स थी जहां पर बिजनेसमैन को, जो स्टार्टअप बेसिकली जो कंपनीज थी जिन्होंने स्टार्टअप किया, जिन्होंने नई चीजें स्टार्ट की, वहां पर बहुत सारा फाइनेंस, बहुत सारी स्कीम्स में बहुत सारा फंड जो है इन स्टार्टअप कंपनीज को दिया. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडिंग दी वो दी है आईटी सर्विसेज को और हेल्थ इंडस्ट्री.
हेल्थ इंडस्ट्रीज को. सो आईटी सर्विस की मैं बात करूं, आईटी सर्विस, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट like the business, like the profession in the IT service, IT field, analytic field, enterprises, software technology, hardware, internet of things. सो मैं आपको बोलूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मैं बात करूं, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहां पर आपको 15 लाख रुपए पर इन्वेंशन का आपको फिजिकल बेनिफिट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से. उसके अलावा मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम्स हैं जहां पर आईटी फील्ड में है, जो लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक की वो आपको बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, जिसको मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम में अप्रूव किया गया मोदी सरकार ने. उसके अलावा आईटी सर्विस में एक और है, द स्कीम टू सपोर्ट आईपीआर अवेयरनेस, सेमिनार वर्कशॉप इन ई एंड आईटी सेक्टर. सो बेसिकली अगर कोई ऐसी कंपनी, अगर कोई ऐसी स्टार्टअप इंडस्ट्री आईटी सर्विस से रिलेटेड कुछ सेमिनार्स कराती है, वर्कशॉप्स कराती है, उससे रिलेटेड भी उस ऑर्गेनाइजेशन को सम बेनिफिट्स हैं, सम इंसेंटिव्स हैं, और वो बेनिफिट जो हैं अब बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख तक के बेनिफिट उसको दिए गए हैं. उसके अलावा क्रेडिट गारंटी दी गई है, both for the term loan, for the working capital facility up to 1 crore limit tak per borrowing unit are being provided. So that is the financial help from the Modi Sarkar, which the Modi ji announced in the year 2016 on January 16. Performance and credit rating schemes. MSME की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, MSME स्टार्टअप है, MSME है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, देन उनको इंसेंटिव का भी इसमें कुछ स्कीम्स हैं जो उसको इंसेंटिव देती हैं. उसके अलावा कुछ फंड्स लिमिटेड टू मैक्सिमम क्रेडिट ऑफ ₹8 करोड़ तक का सपोर्ट है, सॉफ्ट हार्डवेयर एंड सम अदर इंटरवेंशंस आर प्रोवाइडेड. अगर इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं, तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर उनको फाइनेंशियल 8 करोड़ रुपए तक की हेल्प मोदी सरकार स्कीम्स के थ्रू दे रही है. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, जहां पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री फॉर अ डिपॉजिट ऑफ अ 6 month रिफंडेबल रेंट एंड ऑफिस स्पेस, लाइक अगर किसी को ऑफिस स्पेस में दिक्कत है, जिसका स्पेस का एरिया है 467 स्क्वायर फीट टू 8657 स्क्वायर फीट इज प्रोवाइडेड. सो वहां पर मोदी सरकार उनके जो रेंट हैं 6 month का, उसको रिफंडेबल रेंट के तौर पर उसमें दे रही है, जिसकी स्कीम का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम. उसके अलावा एमएसएमई की मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट है, उसमें काफी बेनिफिट है. नेशनल अवार्ड है फॉर स्पेसिफिक फॉर द एमएसएमई, राइट. द सिलेक्टेड नेशनल अवार्ड इज फैसिलिटेटेड with a cash prize of ₹1,75,000 or 50,000 in order of ranking. Actually जो एमएसएमई में, एमएसई में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे कैश की फॉर्म में. एंड उसके अलावा अटल वाजपेयी जी, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे मिशन हैं. बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन, उसकी एक स्कीम है. वहां पर अटल इनोवेशन मिशन विल प्रोवाइड ए ग्रांट in aid of ₹10 crores to each AIC for the maximum of 5 years. 5 साल तक 10 करोड़ रुपए का उनको फाइनेंशियल हेल्प. उसके अलावा अटल जी की कुछ टिंकरिंग लेबोरेटरीज के ऊपर भी कुछ बेनिफिट है, जिसका बेनिफिट सरकार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए से ज्यादा. सो डिपेंड so many things in the, even the Udan training program for the unemployed youth of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के लिए सरकार ने 2016 में जो स्कीम चलाई, उसमें सबसे मेजर स्कीम यही थी जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दी गई, जिसमें टोटल जो फंडिंग उसमें 750 करोड़ has been marked for the implementation of the scheme over a period of 5 years. 5 साल में 750 करोड़ उड़ान ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, उससे रिलेटेड है, सो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं. उसके अलावा मुद्रा लोन की बात की गई, जिसमें आप सभी को पता है शिशु उसमें
मुद्रा लोन है, किशोर है, तरुण है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। 5 लाख रुपए से लेकर नहीं 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको अवेलेबल है। सो ये मैं सारे जो बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, ये सारे बेनिफिट उनको बता रहा हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं बट दे डोंट वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री, दे डोंट वांट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस, दे डोंट वांट टू जॉइन द चार्टर्ड फर्म of the practicing chartered accountant, but they are looking for the business. So these are the schemes available. These are the scheme which the Modi ji announced in the year 2016. So you can take the benefit of these schemes. उसके अलावा सिडबी बैंक की स्कीम्स हैं जिसमें आपको द लोन अमाउंट ग्रांटेड इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंटरप्रेन्योर, लाइक द जर्नल वुमेन, जो वुमेन बेसिकली एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, जर्नल कैटेगरी की बात करते हैं, स्टार्टअप असिस्टेंट स्कीम है, द फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसकी जो है वो 2 करोड़ तक है, इक्विटी किकर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने इनमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बट अगर फिर भी आपको फ्यूचर में दिक्कत आती है, सो इन द लास्ट व्हेन आई विल कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन, व्हेन आई विल वाइंड अप माय द presentation part, I will share my mobile number with you in the chat box, so that if you are looking for some other information, yes, you can talk to me directly. So now the third part is the teaching part C. So we have left with the two part. So two part we have already covered, A and B. So now the C part is very small, the teaching profession. If you're a chartered accountant, you're looking for the teaching profession. You want to start your teaching institute basically. So अगर आप सीए से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप कुछ ऐसा पढ़ाते हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू द सीए प्रोफेशन, then maybe you have to take the special permission from the council of the ICI, right? One thing. Another thing, if you want to start the teaching profession, if you want to join this teaching profession as a lecturer, as a teacher, as a tutor, that's a very good area, very respectable job. But I would say you have to think before, you have to think much before start this profession, this teaching profession. What you have to think? You have to think about you have to select what subject basically. The subject is very important. If you want to start the teaching profession and the subject is costing, I would request you to please think again about the subject. Because costing एक ऐसा subject है जो एक limited revenue generate करता है. But if you're looking for the subject income tax, if you're looking for the subject accounts, if you're looking for the subject indirect tax, I will salute to you. And this subject, these subject basically income tax, indirect tax and accounts and some other subject, the law or the some other area basically जहाँ पर updations आते रहती हैं. So मैं आपको बोलूँगा जब आप teaching profession में join करना चाहते हैं तो आप उस subject को उठाएं जिसमें आए दिन there are some updates on the daily basis in that particular subject, so that market में आपकी existence, मार्केट में आपकी स्टेबिलिटी और आपका जो रेवेन्यू कर्व है, जो आपका रेवेन्यू है, जो पैसा कमाना है. देखो हर चीज है, ये जितने भी मैं चारों पार्ट की मैं बात करूंगा, अल्टीमेटली द गोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, whether you are a qualified, whether you are just pursuing your chartered accountancy, whether you are a qualified or you are not a qualified person, so ultimate goal of every person is just to earn the money. How to earn the money? So I'm just sharing the options which you have. If you're a chartered accountant, you have a different opportunity. If you are not a qualified chartered accountant, you have different opportunity. If you're just a student, you're just, right now you're pursuing your chartered accountancy, then again you can earn the money. But if you want to earn the money from the teaching profession, then the very important thing is selection of subject. Your subject, your topic must be very important. The need of the student, the need of the market, उससे रिलेटेड होना चाहिए. सपोज आप इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में एक्ट में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं. जब आप इनकम टैक्स आज किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वही स्टूडेंट 2 महीने बाद फिर आपके बैच में बैठा हो सकता है. मैं आज भी कई ऐसे हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी आईसीए में पढ़ाते हैं, उनसे जब भी हम लेक्चर सुनते थे ना, और
आज इतने सारे चेंजेस हो गए, आज भी उन्हीं के लेक्चर सुनते हैं। वो बात अलग है कि वो वेबिनार के थ्रू पढ़ा रहे हैं, अगर वो पेड क्लासेस चलाएंगे टू अपडेट आवरसेल्फ, टू अपडेट आवर नॉलेज, डेफिनेटली वी हैव टू अटेंड दीस टाइप ऑफ लेक्चर्स, यू नो, because we are looking for updation. We are looking for updation in the income tax, we are looking for the updation in the indirect tax, we are looking for the updation in the accounting, we are looking for the updation in international financial reporting standard, we are looking for the updation in the like the NDS. कुछ ऐसी चीजें जो आए दिन चेंज होती हैं, जो आए दिन चेंज होती हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाएं अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में कंटिन्यू रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो, कंटिन्यू इनकम का जो आपका रेवेन्यू कर्व है उसमें स्टेबिलिटी रहे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, आपको भी पता है कि आप कॉस्टिंग क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि कॉस्टिंग को आपको पता है, बट कॉस्टिंग पढ़ने वाला बच्चा, कॉस्टिंग पढ़ने वाला प्रोफेशनल एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं आता। जब उसका पेपर क्लियर हो जाता है, जब उसको कॉस्ट शीट बनानी आ जाती है, जब उसको एबीसी एनालिसिस में आ जाते हैं, बट आज भी इनकम टैक्स पढ़ने वाला आने वाले दिनों में फिर आएगा, क्योंकि पिछले साल जो थे इनकम टैक्स की जो स्कीम थी वो पुरानी वाली थी। इस साल जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न बनाएंगे तो वो दोनों स्कीमें, नई स्कीम में जाएं या पुरानी स्कीम में जाएं, देन आपको दोनों लेवल पे कैलकुलेशन करनी। सो अगर आपको इनकम टैक्स आता है, अगर आपने ऐसे गुरु से क्लासेस ली हैं, तो डेफिनेटली देन यू कैन एनालाइज विच स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी, राइट? और उसमें भी ऑप्शंस हैं, एक ही बार ऑप्शन है लॉन्ग लाइफ के लिए, एक बार आपने दूसरी स्कीम ले ली तो आपको चलना पड़ेगा फिर, राइट? सो ये सारे अपडेट्स कहाँ पर आते हैं, ये सारे अपडेट्स कहाँ पर हैं? इनकम टैक्स की साइट पे, इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट पे, यू नो, हमारे आईसीए की वेबसाइट पे बहुत सारी कमेटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमेटी है, इंडियस की बात करें, आईएफआरएस की बात करें, डायरेक्ट टैक्स कमेटी की साइट बनी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स की कमेटी की साइट बनी हुई है, इवन हमारे ऑडिट से रिलेटेड जो हमारे जो स्टैंडर्ड है, बहुत सारी चीजों में चेंज आता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोलना चाहते हैं, देन प्लीज 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 30 दिन लगे, प्लीज थिंक अबाउट द सब्जेक्ट। when your selection of subject is important, when your selection of subject is very good, I would say आपको लाइफ में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका सब्जेक्ट की सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो आपको टीचिंग प्रोफेशन में फिर सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा काम भी करना है और सोचना भी है, राइट? सो व्हाई यू आर लैकिंग? जस्ट द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सो प्लीज थिंक अबाउट दिस। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस पार्ट। हमारे पास 20 मिनट है, सॉरी 20 मिनट नहीं, 35 मिनट है। 35 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसमें मुझे आपको कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज की बात करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन की बात करनी है, इसमें मुझे प्रैक्टिस में इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए हैं, जैसे नेटवर्किंग की बात करनी है, कुछ ऐसे जहां पर हम पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट की गुडविल को बाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी बना सकते हैं, उसकी बात करनी है। और लास्ट में जो मैं बात करूंगा, लास्ट में कुछ इंस्टीट्यूट की कुछ अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू like some of the announcement related to the practice part, उसकी बात करनी है। और लास्ट, सबसे लास्ट में है the basic components which are very important if you want to become a successful professional in your life, so उसकी बात करेंगे, right? so चलते हैं वन बाय वन, एंड थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं कहता हूं कि सीए बनने के बाद आप ये सोचें कि सीए बनने के बाद इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, तो आपको कितनी बार सोचना है। प्रैक्टिस स्टार्ट की, सपोज आपने इन द ईयर 2020 आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, आई वुड से कि एक तो आपको स्टार्टिंग में सोचना है, द वेरी फर्स्ट टर्निंग पॉइंट when you are going to start your practice area, when you are going to join this practice area, you have to think about this कि मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। दूसरा, when you will complete your 5 years experience, the practice time period 5 years, when you will complete your 5 years in your practice, then again you have to think about this. And what you have to think? You have to think about the specialization. That is the second turning point in the practice. First, at the starting, when you are going to join. Second turning point, when you have completed your 5 years in your practice, then again you will think about the specialization. कि 5 साल में जो मैंने किया है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ? क्या मुझे जीएसटी में प्रैक्टिस करनी है? क्या मुझे इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करनी है? क्या मुझे फॉरेंसिक ऑडिट ज्वाइन कर लेना चाहिए?
क्या मुझे इंडियस में कंप्लायंसेस में काम करना चाहिए, क्या मुझे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम करना चाहिए, क्या मुझे लिटिगेशन में जाना चाहिए। सो 5 साल बाद आपको फिर सोचना पड़ेगा। तीसरा टर्न आता है प्रैक्टिस में जब आप 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं, व्हेन यू आर एक्चुअली एफसीए। 5 साल के बाद आप एफसीए बन जाएंगे, बट एफसीए बनने के बाद जब आप 5 साल और कंप्लीट कर लेंगे, तब आपके माइंड में बहुत सारी चोटें, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आएंगे कि 10 साल बाद मैं कहां स्टैंड करता हूं। then you will compare yourself with the other chartered accountant, like the peer chartered accountant, the peer member, right, जो आपके साथ थे, जिन्होंने आपके साथ सीए कंप्लीट की। आज वो कहां पर है, आप कहां पर हैं, आप कहां पर हैं, वो कहां पर हैं। then you will compare, when you will compare after completing your 10 years, then आपके माइंड में तीसरी बार टर्निंग पॉइंट आएगा कि अब मुझे क्या नया करना चाहिए। सपोज 10 साल बाद आप अपने दोस्तों से, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से पीछे चले गए हैं, पीछे रह गए हैं, जिन्होंने आपके साथ सीए की थी, वो यहां पहुंच गए और आप यहां हैं 10 साल बाद। सो दिस इज द डिफरेंस। सो हाउ टू कॉप अप दिस डिफरेंस, हाउ टू फिल दिस डिफरेंस, हाउ टू फिल दिस द गैप, you have to think in the third time. So third time you have to think about this, how to fill that gap. If you are at the upper side, then how to maintain this level, because you are actually उन लोगों के साथ से बहुत दूर निकल गए हो जिनके साथ आपने सीए कंप्लीट की थी, वो पीछे रह गए। आपको मेंटेन कैसे करना है वो लेवल, आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप पीछे हैं तो वो कॉप अप कैसे करना है, उन तक कैसे पहुंचना है, वो कंपैरिजन लेवल बराबर कैसे लाना है, वो गैप कैसे फिल करना है, वो कमी कैसे पूरी करनी है, तो आपको तीसरी बार सोचना पड़ेगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट, when you will complete your 20 years in your practice, then how to manage every activity related to your practice from the office only. You don't want to visit to the income tax department. Maybe you want to join, maybe you want to visit to the income tax department, maybe you want to visit to the GST department, like for the litigation purpose. But actually you don't want to work by own. You want to get it, that work from the other person, from your office assistant, from your training. Basically those are the trainer, basically the articles, those are working with you in your firm as a trainee. So how to get that work complete from these person, then you have to sit in the office properly. You have to manage each and every activity from the office. Whether you are visiting to the income tax department or like you are visiting to other department, by side, how to manage each and every activity, the professional activity, like the one person is, preparing the balance sheet, another person is just completing the audit part, one person is going for the forensic audit outside, one person actually, representing yourself in the bank for the concurrent audit purpose. So different assignment, you have an unlimited opportunity. Then after 20 years, when you will complete your 20 years, so how to manage each and every activity related to your practice part, related to your practicing office. So the fourth time, the turning point will come to you. So I hope that fourth one is the last turning point. So पहला जब हम सीए बने तब सोचोगे आप, जब आप 5 साल कंप्लीट करोगे तब सोचोगे, जब आप 10 साल कंप्लीट करो तब सोचोगे, जब आप 20 साल कंप्लीट करेंगे तब आपको सोचना पड़ेगा। सो बेसिकली दीज आर द टर्निंग पॉइंट इन द प्रैक्टिस। सो नाउ व्हाट आर द पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फॉरेंसिक है, डेटा एनालिटिक्स है, उसके अलावा सिस्टम ऑडिट है, उसके अलावा सीसा है, उसके अलावा डीएस है, डेटा साइंस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप उसमें काम करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने जॉब नहीं ज्वाइन की, आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यू जस्ट अ मेंबर ऑफ आईसीआई, इवन यू कैन अप्लाई assignment, even you can apply for the working like from the assignment from the ICI. आप कुछ काम नहीं करते, you are just a member of ICI, you don't have any COP with you, but sometime maybe you have to apply for the COP, you have to get the COP from the ICI. इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं
अगर आप सीए बनने के बाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एम्प्लॉय ऑफ द आईसीआई, यस यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आईसीआई की वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट आती है, आईसीआई की वेबसाइट पर कॉल किया जाता है रिज्यूमे के लिए, प्रोफाइल के लिए, प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे, please submit your biodata if you want to apply for the job in the ICI. And ICI, basically in the ICI, under the umbrella of ICI, we have different, the committee. We have different committee. We have accounting body, we have some standard committee, we have review committee, we have a quality control board, we have some other, we have the professional, like the professional ethics committee. We have different committee, and every committee wants a professional person from the market. So they are looking for the newly qualified chartered accountant. They are looking for the experienced chartered accountant from the market as employee of the ICI. So you can apply for the job in the ICI. And as a practicing chartered accountant, or as a not as a practicing chartered accountant, but you are not working in the industry, even you can apply for the assignment. Like the Financial Reporting Review Board, you can apply for the review assignment. So like the handsome amount ICI paying for that, a minimum 10,000 per assignment, per review report. If you're looking for a quality, like a quality review purpose, you're looking for some assignment on which you want to give the quality review report, the fees is minimum 10,000 and maximum 1 lakh. Depend upon the assignment. If the assignment is huge, the maximum fees could be 1 lakh. You will get the 1 lakh fees from the ICI when you're going to complete that assignment, like the quality review assignment. Peer review assignment, minimum 15,000, maximum 1 lakh, depend upon the review assignment. If the chartered firm is big, the fees could be 1 lakh. If the chartered accountant is a very small firm, the fees could be 15,000. If you want to work with the ICI as a faculty member, again, you have opportunity. You are a practicing chartered accountant, whether you are a practicing chartered accountant, yes or no, but you must be a member of ICI. Yes, you are a chartered accountant, you are a professional. Even the MBA they are applying for the, like the, with the ICI for as a faculty purpose. Even the non-chartered accountant, the company secretary, they are working as a faculty of the ICI. Even the cost accountant, they are working with as a faculty with the ICI. So why not you? You can apply for the from the, like, to the ICI as a, if you want to work with the ICI as a faculty member. Exam setters. If you want to work with the ICI as an exam setters or the paper setters, yes, a handsome amount ICI paying to the exam setter or to the paper setters. You are looking for a seminar from the ICI. Yes, you will get the money for the seminar. You are representing that seminar. You are basically delivering your deliberation on a particular topic. Yes, you will get an amount from the ICI. For the webinar also, for the lectures also. Even you are writing on the ICI website one article or some article, informative articles, like the information article, like you are giving some professional information to the, like the professional, with you are writing something on the ICI web page, yes, you will get some amount. Resources, as a resource person, you are providing some resources to the ICI, yes, of course you will get some handsome amount from the ICI. So these are the opportunities with the ICI. Now the post qualification courses, first is the ESA, we can say the DISA also, information system audit. If you want to become a system auditor, yes, a DISA course is there. Fees is very low. 20,000 is the fees. 6 months is the time period. 2 papers are there. To complete that DISA, you have to score 60%. So within a 6 month, you can add a certificate of DISA, diploma in system audit, from the ICI. So what will happen, when you complete your DISA, what will happen with you? Even you can apply for the bank audit. So bank is generally giving a priority to the DISA qualified person for the bank assignment, like for the like for the statutory audit, like for the concurrent audit, like for the stock audit, like for the revenue audit, like for the system audit, like for the forensic audit, right? So these are the opportunity for the DISA holder. So if you are a qualified chartered accountant, yes, these are the courses which are available for the qualified person. If you want to add something after your CA, yes, a minimum amount
after paying a minimum amount within the a limited time period, 6 months or 3 months or the maximum 1 years. So there are some many courses offered by ICI, many courses offered by other university, many courses offered by other institutes like the professional institute, like the ISACA international level. So they have launched so many post-qualification courses for the chartered accountant. The person who is a member of ICI, who is a qualified chartered accountant, he can add some value after CA. Right? So these are for the system audit. Diploma in insurance and risk management. Yes. If you are looking for this field, insurance and risk management, very minimum amount, 6,150 rupees is the fees. Within the 3 months, you can appear. If you want to clear, when you clear, you will get the diploma. You will get the certificate from the ICI DIRM, diploma in insurance and risk management. So basically, this is for the insurance industry. If you want to work as a consultant for the insurance industry, yes, this certificate will help you to get the assignment and to update yourself with the help of knowledge. Diploma in international taxation. So I'm sitting in India. I want to provide a professional service to the Canadian person, to the England person, to the British person, to the American person, to the Australian person. Yes, I can do. But what about the act in the Australia, like the income tax act in the Australia, like the America, like the Canada? So first I have to read that. First I have to understand that taxation part. Then I can provide. Otherwise not. So fees is 40,000. Depend. कौन सी country है? Depend. कौन सी country का international taxation है? 120 hours, 2 exam. You will get something validation after your CA. Like in the case of merger, in the case of acquisition, in the case of tax treaty, double taxation, transfer price, right? सब चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें. If you want to add something in this field, international taxation, yes, you can add. Certification course on GST, very important. आजकल कोई अगर कहीं भी नहीं प्रैक्टिस में काम कर रहा तो जीएसटी में तो कर ही रहा है. जीएसटी में तो कर ही रहा है. 3B फाइल कर रहा है, GSTR 1 फाइल कर रहा है, GSTR 9 फाइल कर रहा है, GSTR 4 फाइल कर रहा है. Everybody is working in the GST. Because DVAT के जाने के बाद ऐसा लगा कि मार्केट से काम खत्म. But DVAT जो क्वार्टरली था, मंथली था, एनुअली था, 6 मंथली था. नाउ जीएसटी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. क्योंकि इनकम टैक्स के केस में जो हमारे पास जो क्लाइंट जो फीस पे करता था वो करता था एनुअल बेसिस पर. बट जीएसटी के केस में वो जो फीस उसने पे करनी स्टार्ट कर दी मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी. इस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना. 10 क्लासेस हैं, 18,000 पे इन्वेस्ट करने हैं, 3 महीने में कोर्स हो जाएगा. ऑनलाइन पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 50% स्कोर करना है. दैट्स इट. वेरी वेरी सिंपल. If you have completed your chartered accountancy, you want to add something, and very important thing, please ICI की GST के पोर्टल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना BGM, background material, very useful. More than 1,400 pages are there. If you understand each and every page of that background material, I would say you will learn so many things about the GST. So what is GST? Like what is anti-profiting authority? What is, the advance ruling in the GST? What is the time of supply? What is the time of supply with the place of supply? What is the refund under section 54? What is ITC section 16 to 21? So there are so many things in the GST, right? So what is GST reconciliation? If you want to learn so many things in the GST, if you want to start your practice in the GST, first go for this course. When you will learn from this course, you can apply into your practical life. You will encash so many assignments from the market related to this GST. Then the certification course of the anti-money laundering. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरीके से इसका नाम है, इंडिया में जितनी भी मनी लॉन्डर हुई हैं, टेरर फंडिंग हुई हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर एक स्टॉप लगाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, कौन कौन से ऐसे टेरर्स हैं, बेसिकली दोज आर इन्वॉल्व इन दिस मनी लॉन्ड्रिंग पार्ट. So money laundering could be for the change in the market. Money laundering could be for the terror funding also. कि उस देश में
हालात को बिगाड़ के रखो, तो मनी लॉन्डर होता है। अब जब मनी लॉन्डर होगा तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड नहीं होगी, प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो किसी खाते में नहीं होगी, या फिर पैसा ऐसा होगा जो 2 नंबर का होगा, और उस 2 नंबर का पैसा कहां लगेगा? ऐसी प्रॉपर्टी में लगेगा जहां पर कोई लीगल पर्टिकुलर लॉ में कोई लीगल स्टेटस नहीं है। उस प्रॉपर्टी को जब मर्जी आप सेल बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, राइट। सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जब आप सर्टिफिकेशन कोर्स करने जाएंगे, इसकी फीस है 11,800 इंक्लूडिंग जीएसटी। 12 लेक्चर्स हैं, 14 एक्ट हैं, 14 एक्ट हैं इसमें। इसमें लेबर एक्ट है, इसमें आईपीसी है, इसमें गिफ्ट एक्ट है, इसमें और बहुत सारे एक्ट हैं। अगर आप इन एक्ट का स्टार्टिंग के 2-2 4-4 पेज भी पढ़ लेंगे ना, और उसके बाद कर लेंगे एलएलबी, तो मैं आपको बोलूंगा सर प्रैक्टिस करें, so you can encash unlimited money from this area, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि आने वाले टाइम में 2 चीजें बहुत चलने वाली हैं, एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक सिंगल पेपर है, 100 नंबर का होता है, 50% लाने आपको पास करने के लिए। नेक्स्ट, concurrent audit. If you want to become a concurrent auditor of any bank, yes, the certification course, 3 महीने का कोर्स, very simple, 1 exam, 50% you have to score. So what is happening in the concurrent audit? You can learn each and everything from the A to Z if you go for this course from the ICI. उसके अलावा फिर हमारे पास है इंटरनल ऑडिट। सभी को पता है कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। कंपनी में जाओ, डेली बेसिस विजिट करना है, वहां जाओ, खाओ पियो, ऑडिट करो, डेली ट्रांजेक्शन, रूटीन ट्रांजेक्शन चेक करो। नो सर, दिस इज नॉट अ इंटरनल ऑडिट। इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरनल ऑडिट, आपको कंपनी एक्ट 2013 के कंप्लायंसेस भी ध्यान रखने हैं, नंबर 1। नंबर दो, उसके जो इंटरनल कंट्रोल है उसको भी वैल्यूएट करना है, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इंटरनल ऑडिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब आएगा तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाय करके अपनी स्टैट ऑडिट रिपोर्ट करेगा। आपकी रिपोर्ट अगर ठीक नहीं है, अगर बैंक की कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट ठीक नहीं होगी। और बैंक की जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट ठीक नहीं होगी, सो आई वुड से कि फॉरेंसिक ऑडिट तो होगा ही होगा उस ब्रांच का। उस ब्रांच में कई ऐसे उस ब्रांच के कस्टमर होंगे जिनका फॉरेंसिक ऑडिट होगा, क्योंकि वहां पर फ्रॉड होगा ही होगा। कहते हैं ना, अकाउंटेंट का काम खत्म होता है, अकाउंटेंट का काम खत्म होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम स्टार्ट होता है एज इंटरनल ऑडिटर। जब इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम खत्म होता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम खत्म होता है तो फॉरेंसिक ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है। जब फॉरेंसिक ऑडिटर का काम खत्म होता है, देन ईडी और सीबीआई का काम स्टार्ट होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, राइट। सो ये इंटरनल ऑडिट को इतना लाइट वे में मत लें, क्योंकि आने वाले टाइम में, ठीक है मानता हूं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जब हम इसको सम अप करते हैं इन द रिपोर्ट इन द शेप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये भी बहुत आसान है, 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाता है। 10 से 12 हजार फीस है इंस्टीट्यूट में, 30 आवर्स का ये कोर्स है, आराम से कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर आप सीख लें, ज्वाइन कर लें, then it will come to know what is actually internal audit. Then we have the forensic accounting and fraud detection. ये 18,000 रुपये फीस है, 12 लेक्चर्स हैं, 6 महीने का कोर्स है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको स्टैट्यूटरी बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर से अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है फॉरेंसिक पे, आपको व्हाइट कॉलर फ्रॉड में डील करना है, अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रॉड को डिटेक्ट करने का काम करना है, अगर आपके माइंड में कोई जासूस वाली बातें चलती हैं, आपका बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में, सो आपको फॉरेंसिक फील्ड में जाना चाहिए। और फॉरेंसिक फील्ड में जाने से पहले, अच्छा इसका एक और नेक्स्ट वर्जन है जिसको हम बोलते हैं CFA, सॉरी इसको कहते हैं सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, CFE, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करना चाहते हैं, देन FAFD इज अनफ फ्रॉम द ICI. If you are looking for outside India, then CFE is very important. Like you want to start your profession, you want to join this profession, forensic audit and fraud detection at the global level, then you have to go for CFE. Very very important. ठीक है, इसमें फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है। रफली CFE की मैं बात करूं तो 40-50,000 में कंप्लीट हो जाता है। 1 ईयर का टाइम पीरियड है, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, 6 महीने में हो जाता है। वैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 साल लगाएं, सो दैट आप बहुत सारी चीजें सीख के जाएं।
देन बात आती है इंडियस की, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे मार्केट में है ही है, बट इंडियस है जिनकी 250 करोड़ से नेटवर्थ ज्यादा है, या 500 करोड़ उसकी लिमिट है। ये 1 अप्रैल 2017 में जो इंडियस बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ था। बैंकिंग में कई जगह लगा, कहीं पे नहीं लगा, एनबीएफसी में लगा, नहीं लगा, कई कंपनियों में लगा। कई कंपनियां पिछले अपने कई सालों की 2 तरीके से रिपोर्ट बना रही है, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और आईएफआरएस के हिसाब से। उनका कंपैरिजन चलता था, क्योंकि आईएफआरएस की रिपोर्टिंग ग्लोबल लेवल पे होती थी। नाउ AS and IFRS, actually convert into IndAS. Now the gap between the IndAS and the IFRS is not big. That is why US gap is not there, right? So IndAS का कोर्स 18,000 रुपए का। अगर आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं और इंडस्ट्री की स्पेसिफिक डिमांड है कि आपको इंडियस में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो आपको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एंटर करवाना चाहती है, उसको ज्वाइन कराना चाहती है, देन आपको इस कोर्स को करना चाहिए ICI से। वेरी वैल्यूएबल कोर्स, वैल्यू एडिशन, नॉलेज एडिशन। यस, आईसीआई में बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाके इंडियस पे लेक्चर देते हैं, राइट? सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन दोज आर लिसनिंग टू दिस वेबिनार, प्लीज इफ यू वांट टू अपडेट रिलेटेड टू दिस इंडियस पार्ट, कि इंडियस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप इसका कोर्स करें और अपने आप को अपडेट करें एंड अपनी अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करें, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं कुछ 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पहला है, अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना है कि इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आईसीआई एक्ट 1949 के हिसाब से काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर इन चीजों को समझना है कि क्या रूल्स हैं, सीए क्या कर सकता है, कौन कौन से एरिया में ज्वाइन कर सकता है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक के बारे में बता रहा हूं, उसको नोट कर लें। सबसे पहले वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऑफ द रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स 2019 ऑफ आईसीआई। आपको पता है कि रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स 2019 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2020, एक्सेप्ट वो 3 जो चीजें शिफ्ट की गई हैं, 3 चीजों को होल्ड किया गया है। वो 15% वाला, वो खैर अभी मेरा प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक नहीं है, बट उसमें 3 चीजों को होल्ड करके बाकी सब एरिया में कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हो चुका है, रिवाइज 2019 फ्रॉम 1 जुलाई 2020। उसमें वॉल्यूम 1 है बुक, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वॉल्यूम 2 जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 प्रोफेशनल एथिक्स का। और शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, शेड्यूल 2 में 3 पार्ट है, राइट? वॉल्यूम 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें है डिसिप्लिनरी कमेटी के केस स्टडीज, जो जो केसेस ऑलरेडी कोड ऑफ एथिक्स में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिनके ऊपर हुआ है और क्या डिसीजन आए हैं। उसमें कुछ कमेटी के डिसीजन है, कुछ कोर्ट के डिसीजन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। तो वो बेसिकली केस जजमेंट्स हैं, केस स्टडीज हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली आपको पता लगेगा कि किस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्यों हुआ, उसने क्या किया, राइट? सो वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जॉब नहीं कर सकता, जॉब करना चाहता है तो सीओपी सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको देखा गया है कि वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ में जॉब भी करते हैं। आपके 26 एस में 2 सेक्शन एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, आ सकते हैं एक केस में, एक तो 192 और एक 194J। ये हो सकता है कि आपने 6 महीने जॉब की और 6 महीने प्रैक्टिस की तो आ सकते हैं, बट अगर आपने पूरा साल अगर प्रैक्टिस की है तो 192 नहीं आ सकता, पूरा साल जॉब की है तो 194J नहीं आ सकता। तो जहां पर ये चीजें आ रही हैं और जहां पर आपने कुछ ऐसा सेटअप बना रखा है इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, तो वहां पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आपने उन अपॉर्चुनिटी को इनकैश तो कर लिया और कर भी रहे हैं, बट फ्यूचर में प्रॉब्लम कुड बी। So that is why I would say I'm recommending this book, Code of Ethics, Revised Code of Ethics 2019. Please read this book before start anything or to update yourself, ताकि आपके साथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना हो जाए। दूसरी बुक, क्विक इनसाइट ऑन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, अभी रिसेंटली लॉन्च की है कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसको आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है वेबसाइट पे, कोड ऑफ एथिक्स भी अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडी रैकनर ऑन रेगुलरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ आईसीआई फॉर मेंबर एंड सीए फॉर्म्स। ये जो रेडी रैकनर है ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि सीए फॉर्म को नेक्स्ट लेवल पे एक्सटेंड करने के लिए आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस है,
आर्टिकल के क्या रूल्स हैं, आर्टिकल्स की क्या ऑब्लिगेशन है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेनर की क्या रूल्स हैं, ट्रेनर की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में काम कर सकता है, कैसे आप सीए फर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, फर्स्ट है एमईएफ यानी मल्टी एम्पैनलमेंट फॉर्म। अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको एमईएफ फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, क्योंकि एमईएफ फॉर्म में अगर आपके फर्म की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के थ्रू पोर्टल पे चली जाती है तो ये पोर्टल जो होता है अवेलेबल होता है आरबीआई को फॉर बैंक ऑडिट के लिए। एक तो ये फॉर्म भरें अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरा नेटवर्किंग ऑफ द फर्म। इसमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। अगर नेटवर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है कि फर्म की नेटवर्किंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ एज as mentioned by, as guided by, as drafted by ICI Act 1949। तो 2 घंटे का प्रोग्राम वो सेपरेट चलता है, so it will take too much time, so I'm not going in detail particularly। so नेटवर्क कैसे बनाते हैं उसकी बात उसमें है, राइट। और एक अगर मैं बात करूं सो मर्जिंग ऑफ द फर्म, एक चार्टर्ड फर्म दूसरी चार्टर्ड फर्म के साथ मर्ज हो सकती है, उसका बेनिफिट है, उसकी मर्जर की कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। दो चार्टर्ड फर्म आपस में मर्ज होने के बाद कोई एक यूनिक नाम डिसाइड कर सकती हैं। सपोज मेरी है ए एंड कंपनी और आदित्य भाई की है बी एंड कंपनी। सो हम अपनी दोनों फर्म को मर्ज कर रहे हैं और नई फर्म का नाम रख रहे हैं सी एंड कंपनी। सी एंड कंपनी बन गई, इसका बेनिफिट क्या है? सपोज मेरी फर्म में 4 पार्टनर है, आदित्य भाई की फर्म में 5 पार्टनर हैं। सो दोनों फर्म जो मर्ज हो जाएंगी तो हमारे बन जाएंगे टोटल 9 पार्टनर इन सी एंड कंपनी में। सो 9 पार्टनर जब हो जाएंगे तो हमारे नंबर जो हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एफसीए एसीए के जो नंबर्स हैं, लाइक इन द आईज ऑफ सीएजी भी नंबर काउंट करता है कि आपकी फर्म में कितने एफसी हैं कितने एसी हैं। बैंक भी काउंट करता है कि आपकी फर्म में कितने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कितने ऐसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो एफसी हैं, कितने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने डीसा कर रखा है, कितने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन का कोर्स कर रखा है, कितने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्स कर रखा है। So on the basis of these criteria, basically the government department or the bank or the state government or the central government actually give the assignment on the basis of the like the capability, on the basis of like the eligibility, the criteria में कौन सी फर्म फिट होती है। अब किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट के लिए चाहिए 8 पार्टनर फर्म में, हमारी फर्म में 9 पार्टनर, हम दोनों ने मिलकर मर्ज किया फर्म ने, आदित्य भाई ने और मैंने, और बना दी सी एंड को। और सी एंड को में जब हम उस स्टेट गवर्नमेंट का वो असाइनमेंट अप्लाई करेंगे हमारी फर्म को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी फर्म में पार्टनर 8 से ज्यादा है, एलिजिबिलिटी में हम फिट हो रहे हैं, सीएजी की अपनी एलिजिबिलिटी है, उस हिसाब से ये मर्जिंग ऑफ द फर्म होता है। सो मर्जर ऑफ द फर्म जब होता है तो कुछ प्रोसीजर हैं जिसको हमने अप्लाई करना होता है, विद इन 30 डेज में इंस्टीट्यूट को मेंशन करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, कुछ ऐसे फॉर्म है, एफ फॉर्म है, ई फॉर्म है, उसे फिल करके इंस्टीट्यूट को देना होता है, और साथ में मर्जर एग्रीमेंट भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट उसे अप्रूव करता है तो हमारी नई फर्म बन जाती है मर्ज फर्म। सो इन द फ्यूचर हम मर्ज फर्म के बेसिस पर भी असाइनमेंट ऑडिट अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। साथ में हमारी प्रोप्राइटरशिप चल रही है, बट प्रोप्राइटरशिप से अगर हम बैंक ऑडिट अप्लाई करेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी मर्ज फर्म की। कुछ बहुत सारी गाइडलाइंस हैं तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे, राइट। सो ये मर्जर भी बेनिफिट देता है, इससे भी हमारे असाइनमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, इससे भी हम अपॉर्चुनिटी इन कैश कर सकते हैं। जब हमारी फर्म का प्लेटफॉर्म, जब हमारी फर्म में नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हमारी फर्म की एग्जिस्टेंस बढ़ जाती है, हमारी वर्कफोर्स बढ़ जाती है, हमारे स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरा छोटा सा ऑफिस था, आदित्य भाई के ऑफिस को ज्वाइन किया, मर्ज हुआ, हमारा ऑफिस 2 हो गए और बड़े हो गए, हमने एक बड़ा ऑफिस ले लिया, हमारा वर्क सेशन बड़ा हो गया, हमारे पास बड़ा क्लाइंट भी अब आ सकता है। मैंने किसी दिन एक स्टूडेंट को बोला था, वो कहता है सर अगर मेरे पास बिग 4 का क्लाइंट आ जाए और मेरी प्रोप्राइटरशिप है तो क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ? मैंने उससे बोला बेटा कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट, द बिग बस, एयर बस डोमेस्टिक रनवे पे नहीं उतरती एक्सेप्ट इमरजेंसी के अलावा। इमरजेंसी हो तो उतरती है, नहीं तो नहीं उतरती। हमेशा इंटरनेशनल फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पे ही उतरती है। सो बड़ा क्लाइंट बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, बड़ा क्लाइंट अगर छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ जाएगा तो छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता भी नहीं चला गया कि उसके कंप्लायंसेस की डेट आ गई है और पता लगा कंप्लायंसेस रह गए।
क्योंकि उसके पास टीम नहीं है. He is a single proprietorship firm. He is running proprietorship firm. So how he can manage everything like the compliances of the company? It's very difficult. So बड़े क्लाइंट बड़े फर्म में जाते हैं, छोटे क्लाइंट छोटी फर्म में जाते हैं, राइट. सो तभी इंस्टीट्यूट ने ये मर्जर का कंसेप्ट ऐड किया. आप चाहें तो नेटवर्किंग और मर्जर के रूल्स एंड प्रोसीजर को पढ़ें और अपनी फर्म को अपडेट करें. उसके बाद आया परचेजिंग ऑफ गुडविल. पहले ये नहीं था, बट एक बीच में आया कि परचेजिंग ऑफ गुडविल भी आप किसी ओल्ड फर्म की, अब वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत 1973 की फर्म है, अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और भगवान ना करे उनकी डेथ हो गई. और डेथ हो गई, आप उसमें पार्टनर थे, पहले प्रोप्राइटरशिप थे, बाद में आप पार्टनर हो गए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई. आप उसकी गुडविल खरीदना चाहते हैं, गुडविल इन द सेंस कि आप उसकी एग्जिस्टेंस खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं. उसकी कोई गाइडलाइंस है, आप गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट की उसमें, उस बुक में जो मैंने आपको रेफरेंस बुक बोली है रेडी रैकनर वाली, उसमें आप पढ़ सकते हैं. फिर एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी. एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है. कंडीशन है इसमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए. कंडीशन है उस कंपनी का नाम जो है उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्स्ट इनिशियल, जैसे मेरा जे है और आदित्य भाई का ए है, सो हम ए जे या जे ए करके इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी के नेम के लिए अप्लाई करते हैं और इंस्टीट्यूट अप्रूवल देता है. तब हम इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी एक्ट 2013 में इसको अप्लाई कर सकते हैं. बट इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसमें हम ऑडिट नहीं कर सकते. ना हम जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं, ना हम पीरियोडिकल ऑडिट कर सकते हैं, ना हम टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, ना किसी भी तरह का कोई ऑडिट नहीं कर सकते. बट इस कंपनी में सिर्फ हम कंसल्टेंसी सर्विस, कौन कौन सी सर्विस मैं बता देता हूं. इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग की सर्विस दे सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग की सर्विस दे सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हैं, बजटिंग के काम कर सकते हैं, MIS पे काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी दे सकते हैं, मार्केट रिसर्च के ऊपर कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान के ऊपर काम कर सकते हैं, अमेलगमेशन वैल्यूएशन इसके काम कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें. बट हम टैक्सेशन का काम, टैक्स ऑडिट का काम, ऑडिट नहीं ले सकते. ऑडिट हम करेंगे तो अपनी फर्म में ही करेंगे, बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में सिर्फ कंसल्टेंसी कवर होगी. ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. इसमें और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम कहां से पैसा ले सकते हैं इस कंपनी में. सपोज पार्टनर के अलावा और किसी से भी हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं क्या, हम नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इसका शेयर होल्डर बना सकते हैं. तो ये बहुत बुरा कंसेप्ट है. इसमें कम से कम आधा पौने घंटे का टाइम लगेगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में. So now I'm going to I'm going to mention some announcement from the ICI कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहे तो वो किसी फॉरेन कंपनी का अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है. बट कंडीशन ये है कि वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर आप किसी फॉरेन कंपनी का AR बनना चाहते हो तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज परमिसिबल बाय ICI. But you must not be the auditor of the same company. If you are an auditor of that same company, then first you have to resign from the auditor seat. Then you can be. Next, अगर दो या दो से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट को, जैसे मान लो आदित्य और मैं, हम दोनों मिलके हम क्या करते हैं कि आदित्य के क्लाइंट और मेरी फर्म के क्लाइंट हम मर्ज करके उनको GST के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. सो हम मिलके जॉइंटली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द GST टॉपिक. और उससे जो फीस हमें मिलती है क्लाइंट से, राइट, जो हम लेते हैं, हर क्लाइंट से पैसा लेते हैं, उसको हम आपस में शेयर कर सकते हैं. ये हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स के जो शेड्यूल है उसमें भी अलाउ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रोफेशनल फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शेयर कर सकता है. सो दैट इज परमिसिबल. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन प्रोवाइड सर्विस थ्रू द कियोस्क बेसिकली एक डिवाइस होता है जो चार्टर्ड अकाउंट, जैसे होता है ना, पंजाब नेशनल बैंक में चले जाएं, किसी और बैंक में चले जाएं, तो वहां पे एक डिवाइस पड़ा रहता है. आप उसमें पासबुक प्रिंट करते हैं, उसमें डालते हैं पासबुक और प्रिंट होकर बाहर आ जाती है. सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम प्रोफेशनल सर्विस टू योर क्लाइंट थ्रू दिस कियोस्क डिवाइस, you can provide, but the condition is very important. What is the condition? That kiosk device must having only the professional services which the practicing chartered accountant permit to provide under the Chartered Accountant Act 1949. Last announcement. A chartered accountant in practice may engage himself as a registration authority for obtaining digital signature. आपने देखा होगा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट DSC में भी डील करते हैं, DSC बना के देते हैं. So that is permissible by the chartered accountant. Now the last part of my presentation,
मेरे पास ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा हो गए, बस आदित्य भाई 2 मिनट और लूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू मेंशन सम a very important component. If you want to enhance your practice, if you want to enhance your opportunity in the industry, if you are looking for a opportunity from the industry, then from the market, if you are looking for opportunity from the market, if you want to enhance the opportunity level, then you have to work on this area very professionally. Now I'm going to just mentioning the component, the name of the component, that's it. I will not explain in detail because the time constraint is there. Very first one is professional behavior. आपका जो behavior है, चाहे client के प्रति, चाहे institute के प्रति, चाहे दूसरे professional के प्रति, must be a professional. Non-professional नहीं, must be a professional behavior. Professional competence. हमारे 5 fundamental principle है, उसमें से एक है professional competence, right? That must you have in your side. Then you will get the assignment. Professional network, already I have mentioned the network of the chartered firm. So when you have a professional network, definitely you will get some assignment. Suppose आदित्य जीएसटी में काम करता है, मैं सिर्फ इनकम टैक्स में काम करता हूँ, मेरी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस है, आदित्य भाई की जीएसटी में प्रैक्टिस है. अब मेरे पास कोई आता है क्लाइंट और कहता है जी जीएसटी का काम करना, मैं बोलता सर मैं तो जीएसटी में सर्विस नहीं देता, प्रोफेशनल सर्विस, बट हाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका नंबर देता हूँ, मैं आदित्य जी का नंबर देता हूँ और उस क्लाइंट को आदित्य जी को रेफर कर देता हूँ. आदित्य जी के पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है और वो बोलता है सर इनकम टैक्स की सर्विस, आदित्य जी बोलते जी मैं तो नहीं करता, मैं तो सिर्फ जीएसटी में डील करता हूँ, बट हाँ डायरेक्ट टैक्स में जगजीत सिंह जी हैं मार्केट में, उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लो. तो आदित्य मेरे को क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ. क्यों? क्योंकि हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क है. सो वी आर शेयरिंग अपॉर्चुनिटी विद ईच अदर. सो दैट इज आल्सो टू एनहांस द अपॉर्चुनिटी. हाउ वी कैन एनहांस? विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क. प्रोफेशनल अपीयरेंस. आपके अपीयरेंस जब भी आप इनकम टैक्स में जाएं, योर अपीयरेंस मस्ट बी ए प्रोफेशनल, राइट? तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. लॉयल टू द प्रोफेशन. कभी अपने प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव मत बोलें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो नेगेटिव बोलते हैं, यार सीए कर तो लिया बट सीए से कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमें काम देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए. जबकि मैं ऐसे प्रोफेशनल को कहता हूँ, कभी आईसीए की वेबसाइट आपने देखी? आप कभी आप कभी लिंक्डइन को छोड़ो, आप कभी इसको ट्विटर को छोड़ो, आप फेसबुक को छोड़ो, आप टिकटॉक को छोड़ो, आप ये पबजी गेम को छोड़ो, आप आईसीआई की वेबसाइट को देखो. आईसीआई की वेबसाइट पे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, even to getting a big opportunity from the market. When you visit to the ICI website, it will come to know what the ICI is doing, not only for you, even for the whole profession. So hardcore knowledge and soft skill. अगर आप अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग नॉलेज, इनकम टैक्स में तो इनकम टैक्स नॉलेज, जीएसटी में तो जीएसटी नॉलेज, यू मस्ट हैव दैट कोर नॉलेज ऑफ योर एरिया, द प्रैक्टिसिंग एरिया, and the soft skill also. When you are going to represent case, you must have the soft skill. Effective communication. Your communication must be effective. Then you can encash the client. Suppose the client is sitting before you, but you are not able to convince him. So how you can encash that client? So your communication must be effective. Believe in yourself. You must have the confidence in your mind and your body language, your posture, gesture, proper planning. You must properly plan everything. When you're going to execute any assignment, properly plan. Formal speech. Always speaks a word like the professional person. Always speak the professional word, the formal word. Don't speak like the abusing language word, like some other the word. So that not suit to the professional person. Honesty, ईमानदारी, commitment. Yes. अगर आपने किसी के क्लाइंट को काम करना है, तो अगर आपने बोला 10 तारीख को सर ये खत्म हो जाएगा, तो 10 तारीख को खत्म होना चाहिए. जब आप कमिट करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो आपकी फीस भी नहीं रहती सर, क्लाइंट भी आपकी फीस देता है. Follow the code of ethics, very important. So must read revised code of ethics 2019. Proper office setup. जैसे आजकल कोरोना के चक्कर में देखो हर किसी को ऑफिस घर से चलाना पड़ रहा है. सो यू मस्ट हैव प्रॉपर ऑफिस सेटअप. घर से कभी ऑफिस ना चलाएं. ठीक है, स्टार्टिंग में आप चला सकते हैं, बट अच्छा क्लाइंट कभी आपके घर वाले ऑफिस में विजिट नहीं करेगा. वो बोलेगा सर किसी कमर्शियल प्लेस पे अगर आपका ऑफिस है देन आई विल विजिट, अदरवाइज नहीं. फिर आप किसी क्लाइंट को होटल में मिलने जाए कि होटल में टाइम देके सर होटल में मिलते हैं, वो होटल में बैठकर सब लोगों के बीच में अपनी सीक्रेट कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता. सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर ऑफिस, यू मस्ट हैव योर ओन कैबिन, एंड द कैबिन मस्ट हैव द डोर आल्सो, because when the client is going to start to share some secret of his company, so the door must be closed. Train staff.
ट्रेन स्टाफ नहीं है तो ट्रेनिंग दो, वीकली उन्हें ट्रेनिंग दो, महीने में ट्रेनिंग दो. ओपन माइंडेड पर्सन. बिलिंग एंड रिकवरी सिस्टम, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा है, वो कहते हैं सर बिलिंग भी करते हैं, रिकवरी नहीं हो रही. सो टाइम पे बिलिंग नहीं करोगे तो रिकवरी नहीं होगी. जीएसटी डिपार्टमेंट तो कहता है सर 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिलिंग करनी है. वर्चुअल ऑफिस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो. सो मैंने जितना भी अभी तक बोला, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. I have completed my presentation. So I have mentioned each and every point related to the opportunity, how you can enhance your opportunity, how you can add something like the post qualification courses, whether you are in industry, whether you are in practice, so each and everything. Even I have mentioned about the businessman also, even I mentioned about the teaching profession also. So if I have left anything, so please मुझे मेरे नंबर पे मुझे मेंशन कर देना, डेफिनेटली मैं उसमें अपडेट आपको कर दूंगा. सो आदित्य जी, कैन आई शेयर माय नंबर इन द चैट बॉक्स? Definitely, sir. Definitely. Thank you, sir. You can Thank you. also, many viewers are watching on Facebook also, so you can also speak up your number. So I'm again sharing because that is not going to the now. Yes, to all the panelists and the attendees, So it's 9810825002. My full name is already mentioned, already available on the video. CA Jagjit Singh Jacks. So कभी भी आप मुझे बताएं. जी sir, Aditya ji, now over to you. That's all from my thank, side. Thank you very much thank, for inviting me. thank you so much, Jagjit sir. You have wonderfully explained about all the opportunities in CA profession, and just to add upon, Yes, sir. there is also one more opportunity that I think all the members should know, and you will be amazed to know that I was able to grab these. I would say this opportunity in the time period of lockdown only, because I got time to explore this opportunity. क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वी सी एज आर सो बिजी इन ऑल आर रूटीन वर्क कि हम सोचते ही नहीं, जब तक हम खाली नहीं रहेंगे वी कैन नॉट थिंक अबाउट द अदर अपॉर्चुनिटीज. हमें सर जो भीड़ काम कर रही है वो काम नहीं करना है, हमें Very वो correct. काम करना है जिसमें कंपटीशन नहीं है, उसमें आपको फीस भी ज़्यादा मिलेगी और उसमें आपको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगी. There is one opportunity called AEO, Authorized Economic Operator. Yeah. So this is under FTP, Foreign Trade Policy, Yes. right? So you will be amazed to know, sir, there are only 350 companies all over India who have this license. So 350 companies in one country is a very small number. And sir, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है. 2016 से ये लाइसेंस अवेलेबल है, जी. बट ड्यू टू हमारी नॉन अवेयरनेस समझ लीजिए, वी आर नॉट एबल टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज. तो मैंने लॉकडाउन में कम से कम 5 लिस्टेड क्लाइंट्स को ये अप्रोच किया, और यू विल बी हैप्पी टू नो दैट सर, उन्होंने मुझे बोला कि ये मुझे अगर इसमें 6 महीने लगते हैं तो मुझे ये 1 महीने में चाहिए, चाहे आप फीस डबल ले लो. Great, great. क्योंकि सर Great. उसमें बेनिफिट्स ही ऐसे हैं. अगर सर हम वही रूटीन के काम करेंगे सर, मैं कहता हूँ हमें करने चाहिए, बट लेट योर स्टाफ, let your trained staff, let your junior staff, let your senior staff do that work. Yes. We as a professional, we as a practicing chartered accountant, our work, our job is to get the work, to explore new opportunities, to go international. सर हम, अब मैं आपसे अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं बात को. Yes, sir. I have now I have applied for CP Australia. Right. तो अगर हमें कुछ नया करना है, कुछ जैसा आपने बोला कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है, राइट. आज हम अगर प्रोफेशन में है तो हमें कोई ना कोई नई चीज करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा. जब तक हम किसी, आज हमें सीए हम जानते हैं, हमें काम मिलता है क्योंकि हम नेटवर्क के पार्ट है, आईसीआई के पार्ट है. ऐसी अगर हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाते हैं तो हमें कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिलेगा, हमें वेबिनार्स में अटेंड करने का मौका मिलेगा, हम वहाँ के सीपीएस से मिलेंगे, आप वहाँ जाएंगे, वो लोग यहाँ आएंगे,
आउटसोर्सिंग इंडिया में चाइना की वजह से काम इतना बढ़ने वाला है, तो आपको सर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। सीए चाहता है कि हमें काम मिले। Yes. आज क्या हमारे पास कोई इंटरनेशनल का काम आ जाए, इंटरनेशनल वर्क, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते because हमारे we पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है। yes we are not updated person. राइट, तो उसके लिए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी सर, नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको मार्केट में बताना पड़ेगा कि मैं ये करता हूँ। राइट, उसमें सो बहुत सारे ना साफ्टा है, नाफ्टा है, जी, बहुत सारी कंट्रीज के आपस में कॉन्ट्रैक्ट हैं, यस। राइट? सो जैसे सीपीए क्या है, आपको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सर, हमें कुछ नहीं करना, वी आर ऑलरेडी सीए, आईसीआई का एमओयू है सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपको सिर्फ 2 पेपर देने, कुछ ट्रेनिंग देनी है, दैट्स इट। यस तो बस आपको सर डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। अगर हम टैक्स ऑडिट में ही लगे रहेंगे, हम आईटीआर में ही लगे रहेंगे, सर नहीं है। क्लरिकल वर्क। सर दिस दिस जैसे आपने अपने सेशन में बोला सर, ऑटोमेशन की तरफ जा रही है चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने अभी 26 एस देखते हैं। अब तो यस जब आईटीआर 26 एस से आ जाएगी, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, बिल्कुल ओवर द पीरियड खत्म हो जाएगा। सर, मैं कहता हूँ कि 5 साल और रुक जाइए। मोदी जी अगर इसी तरह ई गवर्नेंस के ऊपर काम करते रहेंगे तो आपका जब 26 एस निकलेगा ना, उसके नीचे सिर्फ डिक्लेरेशन निकलेगी कि आप इस पे साइन करके यस, बस स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, आपकी रिटर्न फाइल होगी। राइट। सो सर हमें हमें एज ए सीए हमें बहुत डिफरेंटली सोचना पड़ेगा अगर हमें आगे ग्रोथ चाहिए। जैसे आप कह रहे थे ना सर, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप अपने आप को क्या सोचते हो? यस सर खाली बैठो। मैं तो सीएस को, सबको, जो भी मेरे सेशंस होते हैं, वेबिनार होते हैं, सेमिनार, मैं तो सारे सीएस को बोलता हूँ, बिल्कुल जीएसटी करो करो, अपने आप को 2 घंटे खाली बैठो, कुछ मत करो, मेडिटेशन करो या बैठ जाओ, खाली सोचो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जी दूसरे की चीज को कॉपी मत करो, आप किस चीज में अच्छे हो वो देखो जी। और वो चीज एक्सप्लोर करो। सो थैंक यू सो मच जगजीत सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम आगे भी आपसे फेसलेस असेसमेंट, टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी के मैटर्स पे हम एक सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, एफटीपी पे भी शुरू करने वाले हैं, तो हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। एनी टाइम सो सर, ऑलवेज वेलकम। So thank you so much. Now to all our viewers, I request you to please subscribe our channel and also share this video to the maximum, so that this opportunities for CAs and what all CA can do in profession and in job can be uh, can be explored by all. So thank you for your time, sir. Again, thank you so much, एनी sir. टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank you, यू sir. सर को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना है, आपका भी Thank you so थैंक यू। much. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट दोज हैव जॉइन। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर।